We have discussed difference between sex and gender कि जो gender है वो social construct है और sex जो है वो biological construct है. इसको काफी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया. फिर हमने जो हमारा हम कह सकते हैं stereotypical roles के according जो feminist characteristics हैं या masculinity से हम क्या समझते हैं, कौन से ऐसे characteristics हैं जिसको हम masculinity और femininity की तरह देखते हैं, वो भी हमने लास्ट क्लास में काफी डिटेल में डिस्कस किया था. So just reading this content, ध्यान से सुनिए इसको. The sex and gender differences raises the issue of male, female, masculine and feminine. Male associated with masculinity and female with femininity. With each constructions, the biological difference between men and women get translated into social terms and descriptions. Feminist writers argue that biological difference get heightened through social descriptions of masculinity and femininity. तो जो हमारे फेमिनिस्ट राइटर्स हैं वो ये कहते हैं कि जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है वो कम है, पर हम सामाजिक तौर पर उसको इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं कि वो क्वालिटीज जो है उसको हम एग्जैगरेट कर देते हैं या हम उसको बढ़ा चढ़ाकर मेल या फीमेल के साथ जोड़ देते हैं, जबकि ऐसा है नहीं. Patterns of differences by gender is seen when the character is either masculine or feminine. For example, pink and blue are gendered colors, former regarded as feminine and the later as masculine. For example, है ना, कलर तो किसी को कोई भी कलर पसंद आ सकता है, लेकिन हमने ये चीज में भी हम जो सोसाइटी है उसे सुनते सुनते, मान लीजिए जो छोटा सा बच्चा है, जब वो लड़की है वो जाती है तो वो शोरूम्स में जाती है या टॉयज देखती है तो वो सब पिंक कलर के हैं, उसका सामान जो पेरेंट्स ला कर दे रहे हैं वो पिंक कलर का ला के दे रहे हैं. तो धीरे धीरे उसके मन, जो सोशलाइजेशन हम उसे दे रहे हैं, उसके मन में ये जो पिक्चर है वो बहुत हार्ड एंड फास्ट हो जाएगी कि हाँ, पिंक कलर is for females or is a feminine color and blue is for boys or maybe men. तो ये जो चीजें हैं ये बायोलॉजिकल नहीं है, हम ये चीजें सोशलाइजेशन के थ्रू धीरे धीरे बच्चों के मन में डाल रहे हैं. Being weak and soft are associated with feminine character. वैसे ही जैसे कि weak है, अगर soft है तो वो feminine character है. There are several other traits that are characterized as masculine and feminine. तो इसमें हमने बहुत सारे लास्ट क्लास में है ना नोट डाउन किए थे, एटलीस्ट हमने 15-20 कैरेक्टर्स डिस्कस किए जो मैस्कुलिन कैरेक्टर्स, ये परसेप्शन है सोसाइटी का कि वो मैस्कुलिन कैरेक्टर्स हैं, और ऐसे ही हमने फेमिनिन कैरेक्टर्स आपके साथ डिस्कस किए थे. So masculinity and femininity are concepts which signify the social outcomes of being male or female, the traits and characteristics which desired men and women give men advantage over women. और हम ये पाते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल के साथ अटैच किए गए हैं उसके अपेक्षा जो मेल्स के साथ अटैच किए गए हैं उसमें जो मेन हैं वो एडवांटेज में हैं. Moira Gattis points masculinity is not valued unless performed by biological male. Hence, the male body is imbued in our culture with certain traits that characterize maleness or masculinity. Hence, the human norm of male supremacy. Similarly, femininity is performed by the biological female. The female body is in our culture is imbued with certain traits that characterize female or femininity. According to Judith Butler, any theorization about gender introduces the notion or idea of performance of gender in terms of masculinity and femininity. This performance of gender becomes involuntary as gender gets internalized through the socialization process within the dominant discourses of patriarchy. Gender is performed at different levels within the family and in the society. We socially enter into our gendered categories of masculine and feminine right from birth. तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो ये थियरिस्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जब हम फेमिनिटी को डिफाइन करते हैं, यानी जो औरतों की कैरेक्टरिस्टिक है, जो भी हमारे स्टीरियोटाइपिकल रोल्स हैं सोसाइटी में उसके अकॉर्डिंग, तो वो जनरली उसकी बॉडी से एसोसिएटेड है ना. हमने डिस्कस किया था जैसे कि रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो है उसको हमने इतना एग्जैगरेट कर दिया कि बायोलॉजिकली जो हम कह सकते हैं कि मे बी चाइल्ड बर्थ है और चाइल्ड केयर का प्रोसेस है वो फीमेल के साथ अटैच कर दिया गया. और कोई भी अगर बच्चा है उसका हमें क्या कहते हैं टेक केयर लेना है, तो जो जब हम केयर किसी की करते हैं ना, तो वी हैव टू बी सॉफ्ट, वी हैव टू बी जेंटल, वी हैव टू बी हम्बल. तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसी को एग्जैगरेट करके हमने ये अटैच ही कर दिया कि फीमेल जो है ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो सॉफ्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फीमेल के साथ हैं, और इसके ऑपोजिट जो मे बी एग्रेशन है या असर्टिवनेस है या स्ट्रॉन्ग है या फिर हम कह सकते हैं रूड बिहेवियर है वो हमने मेल्स के साथ अटैच कर दिया. तो ये हमारा सोशलाइजेशन प्रोसेस है जो धीरे धीरे इस मिथ को या हम कह सकते हैं इस परसेप्शन को धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग करता जाता है. ठीक है, अब जो नेक्स्ट टर्म हमें डिस्कस करना है वो है पेट्रियार्की.
Patriarchy is often used term in everyday conversation. The question here is, what is patriarchy? In casual conversation, whether in English or any other language, the term implies male domination, male prejudice against women, और more simple male power. तो यानी अगर हम इस शब्द का मतलब अगर देखें इंग्लिश या किसी भी भाषा में, तो मेल पावर या जो मेल्स हैं वो ज्यादा पावरफुल हैं, या विमेन के हम कह सकते हैं अगेंस्ट जो है वो अपना पावर शो करते हैं, ये सारा अर्थ हम निकाल सकते हैं पेट्रियार्की से. बट सिंपली द टर्म मीन्स द एब्सोल्यूट रूल ऑफ द फादर और द एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली. और इन डेप्थ अगर हम देखें तो उसका मतलब ये है कि जो फैमिली है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी सोसाइटी की, उसका जो हेड है वो या तो फादर होगा, या जो एल्डर मेंबर है, जो भी मेल मेंबर है फैमिली का, वो उसको हेड करेगा. Patriarchy is thus the rule of the father over all women in the family and also over younger, socially and economically subordinate males. तो जो मे बी एल्डेस्ट मेल है वो फैमिली का हेड होगा. इस सोच के साथ हम पेट्रियार्की को समझते हैं. Literally, patriarchy means rule by the male head of a social unit like family, tribe. The patriarch is typically a societal elder who has legitimate power over others in a social unit. तो उस फैमिली से इसको हम आगे बढ़ा देते हैं. जो पुराने हमारे गांव थे या कस्बे थे ना, उसमें जो हम तब हमारे पास ये जो डेमोक्रेटिक हम अभी पॉलिटिकल सिस्टम देखते हैं, ये हमारे पास नहीं था. तो कोई भी मान लीजिए एक यूनिट रहती थी, एक समाज सोसाइटी रहती थी, तो उसका कोई ना कोई हेड होता था, मुखिया होता था, तो वो भी आदमी होता था, मेल होता था. तो इस कॉन्सेप्ट से पेट्रियार्की जो हमारा समाज है, जो हमारी रूट्स हैं, उसमें हमें पेट्रियार्की दिखती है, जिसका असर आज तक हम देख पाते हैं. However, since the early 20th century, feminist writers have used the term patriarchy as a concept to refer to the social system of masculine domination over women. Patriarchy has been the fundamentally important concept in gender studies. Feminist writers have developed a number of theories that aim to understand the basis of women's subordination to men. तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है मेन और विमेन का, इसको जब हम लोग पढ़ते हैं और हम कहते हैं ना, इसके कारण तक हमको डीप जाकर देखना पड़ेगा कि क्या कारण है कि जो मेंटालिटी है उसमें हम बदलाव नहीं कर पाते, सोच नहीं बदल पाती. तो पेट्रियार्की एक बहुत बड़ा कारण है जो उभर के आता है कि हमारा जो पुराना समाज का ढांचा है वो पितृसत्ता समाज पर ही आधारित है ना. तो उस सोच को बदलना आसान नहीं है. इसीलिए इसको हम इन डेप्थ पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. The term patriarchy is not only a descriptive term that explains how different societies construct male authority and power, but also become an analytical category. This changes to the use of the term patriarchy from a descriptive to an analytical category took place in 1970s in a specific global historical context to feminist political and intellectual culture. In the course of time, this later led to the development of discipline of women's studies or gender studies, where women agitated for their rights. At the university, women demanded that their experiences and point of view be taken seriously, that patriarchy emerged as a way of both describing and explaining the world. Since this time, patriarchy has been used critically to explain the main components of authority and power in any social system. Patriarchy automatically privileges men over women, such that women have little or no claims to material, sexual, and intellectual resources of the society. That is, in a patriarchal society, women have to struggle to be educated, to have property, or to make choices regarding marriage and other aspects of life. For men, these resources are a matter of right and can make choices that affect their lives. तो हम ये देखते हैं कि जो पेट्रियार्की सिस्टम है उसकी वजह से जो हमारे एरियाज, जैसे एजुकेशन में हम फर्क देखते हैं कि जो लड़के हैं या मेल्स हैं उन्हें एजुकेशन मिलना आसान है या उनका अधिकार समझा जाता है, और अगर फैमिली के पास है इतना पैसा एक्स्ट्रा, वो अफोर्ड कर सकते हैं, तब वो सोचते हैं कि लड़कियों को एजुकेशन दी जाए. वैसे ही प्रॉपर्टी राइट्स हम देखते हैं कि वो क्योंकि बेटा है तो उसको अधिकार है कि जो भी कह सकते हैं प्रॉपर्टी है वो उसको मिलेगा ही मिलेगा, पर लड़की है तो उसे दूसरे के घर चले जाना है तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, दे डिस्कस एंड डिसाइड. तो ये सब जो डिफरेंसेस हम देखते हैं उसका कारण जो है वो हमें पेट्रियार्की में मिलता है. वैसे ही मैरिज जो है किससे होगी, कैसे होगी, हम जो अपने पुराने जो भी रूरल एरियाज हैं या इवन अर्बन एरियाज है उनमें हम बहुत सारी फैमिलीज में ये पाते हैं कि अधिकार लड़की को नहीं होता, बल्कि लड़के को उसके अपेक्षा थोड़ा अधिकार दिया जाता है या उसका से होता है, पर लड़की का बिल्कुल भी से नहीं होता. तो ये सब जो चीजें हम देखते हैं इसका कॉज हम पेट्रियार्की में ढूंढते हैं या समझने की कोशिश करते हैं. These were the terms, है ना. ये टर्म्स जो हैं वो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए. उसके पहले जो हम जेंडर टर्म्स सारे आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं जो थ्रू आउट द पेपर आएंगे, उनकी भी डेफिनेशंस आपको अच्छे से है ना आनी चाहिए.
चाहिए जब आप